हाँ, आपको आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। Okay, great. So I'll also share the screen. हाँ, मैं आपको वो बना देता हूँ ना, एडमिन। रुक जाइए, Okay. रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर लूँ। Sure. हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, यस सर, नाउ यू कैन शेयर Okay. योर स्क्रीन। यस सर। Let me know. You can see the PowerPoint presentation. Yes, बहुत बढ़िया। Okay, right. Okay, so shall we start, or shall we wait for some time? Just let me introduce you a brief. Sure. And Shailendra, how much time do I have? What's the time? All these are your students, sir. There is no time limitation. You can. Okay, so I'll preferably have it for about 30 minutes to 40 minutes. Okay. No problem, sir. Right. So all these are my agriculture students, BSc agriculture student, and also they have IPR in their syllabus, BSc Agri. So I think this program is going to be very helpful. And students, Bhaskar Datta sir is my senior from BHU, and now all you know, he is handling IPR related program with the Government of India, with various institutes, right? So without wasting time, sir will start now, so that you can have much time on discussion over this topic. Later I will tell you in detail about the sir's achievement and all that. Okay, so sir, thank you so much, sir, for accepting my invitation. I invite you to please start this webinar that is going to be very useful and highly beneficial to the students of agriculture. Thank you so much, sir. Please. Thank you, Shailendra. Hello, students. I'll be covering a bit of intellectual property knowledge that you may use in agro innovation. I'm sure you would have known about IPR, a bit about it, the basics, like what all things are included in IPR. So I would not be touching them, but I'll be going into some other issues with IPR that might be interesting. So Shailendra has already told about me that I did my MTech in biotechnology, and I'm also a registered trademark and patent agent. And I've worked with different companies over the last 18 and 19 years. That includes Dr. Reddy's lab, Intas Pharmaceutical, Sun Pharmaceuticals, and Hindustan Unilever. So this is what I'm going to talk about today. So I'll have a brief discussion about different types of IP. I'll also see how to read a patent, and then how patent analysis can be helpful in your research, and what all to keep in mind while filing a patent application. So let's start with an interesting case. I'm not sure if you have heard about this, but there's an interesting case that happened between Monsanto and Nuzivedu. So Monsanto, as you know, they are a company who deals with agricultural products, and they got a product of BT cotton, wherein what they did was they incorporated a nucleotide sequence such that the cotton that is produced prevent bollworms from attacking the plant. Okay, so in this case, what happens? The farmers do not have to waste their money and time on insecticides and pesticides, and the plants itself would be resistant to bollworm. Now, in between, what happened? There's a company called Nuzivedu. So Nuzivedu, they brought a similar kind of cotton into into the market, which also has a similar trait as in
they also are resistant to bollworm. So when Monsanto looked into it, they found that this particular seed had certain characteristics that cannot be possible without the nucleotide insert that Monsanto has patented. So what they did, they filed a patent infringement against Nozivedu in Delhi High Court. Now in reply, Nozivedu, what they did, they filed a counterclaim saying that this patent is not valid. Now, the trial court, they heard the patent, their infringement case, and they decided that the patent seems to be valid. And then what happened? The patent was appealed to Delhi High Court. Now, in Delhi High Court, the court or a judge in the Delhi High Court revoked the patent. They revoked it because the patent, they felt it's not patentable under a certain section of Indian Patent Act, which is called Section 3J, where it says that plants and animals in whole or any part thereof, other than microorganism, but including seeds, varieties, and species, and specifically biological processes for production or propagation of plants and animals. In other words, the law says that plants and animals other than microorganisms are not patentable subject matter. So since this is about a cotton plant, which is not a microorganism, so Delhi High Court revoked the patent. The court also said that this can fall under another kind of IP protection, which is Protection of Plant Variety and Farmers Act. So what happens in Plant Variety and Farmers Act? They are also an intellectual property where the plant breeders or researcher farmers who has developed a new variety of plant can protect that kind of plant. So what kind of right they get? They get a right to produce, sell, market, distribute, import, and export. But then the farmers in this case who are using such kind of plants can save or use, sow or resow or exchange or sell their farm produce, but they cannot do it under the name of the right holder. So even if they do it, they cannot say that it is a BT cotton. They can just say as a cotton, a new variety of cotton. So the thing what happened was that this case was again, since the patent was revoked, it was taken to Supreme Court. Okay, so this was appealed to Supreme Court. And in Supreme Court, what Monsanto said that the nucleic acid from a microorganism is patentable because their claim or their patent says that it's a nucleic acid from a microorganism, even if they have put that nucleic acid into a plant. And they say that this is novel because it was not known before, this kind of nucleic acid that can produce such insecticidal activity. And then the invention is a result of human intervention. That means it is not naturally possible. Human has done some, reconstruction of the nucleic acid, and that's how this particular property is developed in the plant. Whereas now Nozivedu said that the nucleic acid on its own cannot perform this action. They have to be inserted into a seed or into a plant, and hence this should not be a patentable subject matter. And once nucleic acid is introduced, it's a part of the seed. So obviously there is no way we can isolate that nucleic acid from the seed. And the other thing that Nozivedu said is that once the gene is inside the plant, it propagates to the progeny, right? It goes on to the next progeny. So you cannot, bring back the same plant again. So the issue in front of the court, Supreme Court, was that if the nucleic acid is a part of the seed, then it is a part under the scope of Plant Variety Protection Act. But if it is not, then it is under the Patent Act. So the thing was, Supreme Court, what they said is that the judges said that Delhi High Court was wrong in invalidating the patent. So patent is indeed valid. So the decision was established that BT crops can be brought under patentable subject matter. Now what happens? Nozivedu has already infringed it, right?
and they have to provide damages to Monsanto. That what kind of damages they need to provide is still under process. Court has not yet, given a verdict, but they have remanded the matter to Delhi High Court. So what is the thing that we learn from this case? We learned that it is not just important to protect our invention. So whenever we talk about patent, we always think that, we have done something, some innovation, and we need to protect it. But it is very important that we also need to understand that we are not infringing upon someone else's patent. So obviously patenting our own invention is good, but then we also need to be very careful that someone else who has a patent, that is not infringed. So let's see what is intellectual property. We all know that intellectual property is something, and property that is developed by the intellect of a person, that is in the brain of a person, right? So it's not a tangible asset. It's an idea which can bring into come into as a product, and it may not have a physical presence, but still have a value. Now there are several types of intellectual property. You all know about it, and I believe. So some of them are patent, trademark, copyright, industrial design, trade secrets. Okay. So let's see how we can differentiate between these. So for instance, this is a medicine which can be given by this kind of auto injector, and there's a instruction leaflet as well. So when we say about patent, patent is about the product. What is the medicine? So that becomes a patent. Okay. When we talk about outer appearances, for example, this auto injector has a different shape, how it operates, it has certain knobs. So all those things comes under industrial design. What is trademark? Trademark is the logo or the brand by which we can identify that, this is what the medicine is, okay, or this is what the product is. So that is protected by trademark. And copyright is any written instruction. For instance, in this case, this is prescribing information, right? So that is given in that particular information booklet, and the content of this can be protected by copyright. I'll not go much into detail about each of these, but I'll speak more about patents. Let's see a little bit about different, time period of protection. When we talk about patents, patents are generally granted for 20 years, okay? But then one thing we need to know is that it's not that you get a grant of a patent and it will be valid for 20 years. You need to keep on renewing that patent. Okay, so patent once granted can be can have a term of 20 years, but not necessarily 20 years. So whenever you see a granted patent, you also need to check if it is still valid or not. It may be invalid because they would not have renewed it. When we talk about plant variety protection, so plant varieties can be protected for 15 years for field crops, and if it is for plants, it is 18 years. Again, as we know in patent, we have to renew it every year. Whereas for plant varieties, we renew it after 6th year for field crops and 9th year for plant variety, for trees and vines. The industrial design, as you say, as you have seen, designs the outer appearance of something. In this case, I have shown about an auto injector, but this industrial design can apply to anything. Like the mobile phone that you're using, the design of the mobile phone is protected under industrial design. The car model of a car, you might be seeing that all cars look little different from each other. Why is it so? Because each of those designs are protected under industrial design. Even for the phones, all phones have little different outlook. There was a case between Apple and Samsung where Samsung copied a design of Apple, but then that was Apple did sue Samsung for that industrial design infringement. So industrial designs are valid for 10 years and it can be renewed for 5 years. Coming to trademark and trade secret. So trademark and trade secret, they are they do not have any limit. So trademarks, once you file a trademark, you need to renew it for 10 years, but you can continue renewing it for hundreds of years. So there's no limit to it. Trade secret, as you know, as long as you keep it secret, it is protected. Geographical indications.
again that is something it is protected for unlimited time, provided that it is renewed every 10 years, and copyright is generally protected for lifetime plus 60 years. Now let's see. I'm sure students are listening to me because I do not see any comment or anything. But can anyone tell me? Students, can anyone tell me what are the difference between a research publication and patent? Has anyone seen a research paper and a patent document? Can anyone tell me what is the difference? पेटेंट के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा हिंदी भी बीच में यूज कर सकते हैं सर, बच्चे भी छोटे हैं तो। अच्छा सर, श्योर प्रॉपर। सो पैटेंट और पेटेंट के बारे में जानते हो बच्चों? सो पेटेंट के बारे में ये होता है एक्सक्लूसिव राइट, यहाँ पे। तो सर ने अभी जो एक्सप्लेन किया उसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट होता है जब आप कोई चीज इन्वेंट करते हो या फिर कोई चीज डेवलप करते हो, मॉडल करते हो, डिजाइन करते हो, ठीक है ना, कोई भी चीज आप एक्सक्लूसिव राइट में। अदरवाइज क्या होगा कि आपने मेहनत किया और दूसरे ने चुरा लिया। तो जैसे सर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एप्पल और सैमसंग के बीच में भी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि देखो एप्पल की प्राइस क्या है, एप्पल की प्राइस है ना, हाँ यस प्रवेश। तो एप्पल के बीच में लड़ाई होगी तो एप्पल का प्राइस देखो और सैमसंग की प्राइस देखो। सैमसंग कम सस्ते में बिकता है, एप्पल का बहुत ज्यादा प्राइस है। उसका कारण ये है कि पेटेंट्स उसके पास हर चीज के पेटेंट्स हैं, वो कोई यूज नहीं कर सकता। तो सर बहुत बढ़िया बता रहा है अबाउट की जोग्राफिकल इंडिकेटर की। जैसे सर ने बात करी तो वो ये होता है कि जैसे हमारे इंडिया की हल्दी को और नीम को पेटेंट करा लिया था अमेरिका ने, ठीक है ना। तो फिर हम लोगों ने लड़ाई करके फिर उसको ले आए कि नहीं भाई हमारे यहाँ ही होता है, हमारे इंडिया की चीज है, तो उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो सर और अच्छे से बताएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू शिलेंद्र। मुझे हिंदी उतनी अच्छी तरह से आता नहीं आप नहीं, मैं कर दूंगा सपोर्ट। आप अपने दैट्स व्हाट, मतलब मैं अगर हिंदी में भी बोलता हूँ एंड देयर माइट बी सम मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, टू पार्डन देयर। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट रिसर्च पब्लिकेशन और रिसर्च पेपर और पैटेंट के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि पैटेंट जो होता है ये सिर्फ इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। इन्वेंशन एज वेल कोई समथिंग कुछ नया अगर हम लोग निकालते हैं तो ही हम लोग को पैटेंट मिलता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं होता है। रिसर्च पेपर में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिसर्च पेपर, तो रिसर्च पेपर में क्या है, कोई भी डिस्कवरी होता है तो कुछ भी फाइंडिंग होता है वो हम लोग रिसर्च पेपर में पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें इन्वेंशन होना हो। और एक चीज होता है, पैटेंट जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कोई भी पैटेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट हम लोग बेच पाए, इंडस्ट्री में उसका यूज हो। अगर वो प्रोडक्ट यूज नहीं होता है तो पैटेंट नहीं मिलता है। जबकि रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं है, कुछ भी हम लोग डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, वो हम लोग रिसर्च पेपर पे पब्लिश कर सकते हैं। रिसर्च पेपर में क्या मिलता है, ऑथरशिप मिलता है, हम लोग ऑथर बनते हैं उस पेपर का। वेरएज़ जब हम लोग पैटेंट की बात करते हैं, पैटेंट में क्या होता है, हम लोग इन्वेंटर्स बनते हैं। तो जिसको पैटेंट मिलता है उसको इन्वेंटरशिप मिलता है। रिसर्च पेपर को हम लोग कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। वेरएज़ जब पैटेंट होता है, कोई अगर इन्फ्रिंज करता है उस पैटेंट को तो हम लोग उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं उसका। और एक बहुत अच्छी चीज जो है पैटेंट में ये क्या है कि पैटेंट का हर जो फॉर्मेट होता है, द वे इट इज रिटन, वो हर जगह सेम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन रिसर्च पेपर का वो चीज नहीं होता है। रिसर्च पेपर जो पेपर का अपना फॉर्मेट है वो मेंटेन करना होता है। जैसे नेचर का पेपर दूसरी तरह से लिखा हुआ रहेगा, अमेरिकन साइंटिफिक का क्या कहते हैं पब्लिकेशन डिफरेंट होगा, इंडियन जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलो, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिन बोलो, उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो डिफरेंस रहता है। जबकि पैटेंट पढ़ने में इजी रहता है क्योंकि हर जगह वो उसका फॉर्मेट सेम रहता है। एंड और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पेपर फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे फ्री में होता है लेकिन ऐसा नहीं कि सारे होंगे।
आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है उस जर्नल का, तभी जाके आपको वो पर डे को मिलेगा। पैटेंट में ये चीज नहीं होता है, पैटेंट इज फ्री टू यूज। सारे जितने भी ये है क्या कहते हैं, जितने भी कंट्रीज है जो पैटेंट पब्लिश करते हैं वो फ्री टू यूज होता है। कोई भी जो पढ़ना चाहे उस पैटेंट को वो उस साइट में जाके उसको पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग अगर पैटेंट के बारे में बोले, पैटेंट का क्या होता है, ग्रांट होता है जो गवर्नमेंट देता है। किसको देता है, इन्वेंटर को देता है। किस लिए देता है ग्रांट, ये जो मोनोपोली होता है वो किस लिए देता है, ताकि इन्वेंटर सारा डिस्क्लोज करे। अगर इन्वेंटर ये सारा पैटेंट सिस्टम नहीं रहता तो क्या होता, इन्वेंटर्स डिस्क्लोज ही नहीं करते अपना इन्वेंशन। क्यों करेंगे, है ना, वो अपना इन्वेंशन खुद बना के वो मार्केट में उसको ला सकते हैं, लेकिन तब तो बाकी लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या इन्वेंशन हुआ है, कैसे इन्वेंशन हुआ है। किसी को अगर उसको इम्प्रूव करना है वो भी करना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। तो इसीलिए पैटेंट सिस्टम लाया गया था, ताकि लोगों को पता चले कि इन्वेंशन कैसे किया गया है। उसके बाद ही हम लोग उसको मतलब मोनोपोली मिल सकता है, ताकि जो पेटेंट पहले विदाउट एनी फीडबैक, मतलब ये बाकी लोगों को ये यूज करने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं। तो वेन एवर यू गेट अ पैटेंट यू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग। मतलब अगर आपको पैटेंट मिल जाता है तो बाकी लोगों को वो मेकिंग जो है, मतलब कोई बना नहीं सकता है, उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता, इवन ऑफरिंग फॉर सेल, मतलब किसी को सेल करने के लिए पूछ भी नहीं सकते हैं वो, और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारे राइट्स मिलता है पैटेंट में। सो पैटेंट क्यों चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पैटेंट का एक वैल्यू मिलता है। जिसको पैटेंट मिलता है वो कमर्शियली एक्सप्लॉयट कर सकता है उसको। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब उस पैटेंट को लेके वो सेल कर सकता है, उस पैटेंट को लाइसेंस कर सकता है, पैटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर को वो बेच सकता है। और बाकी पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलता है, पब्लिक को मिलता है कि उनको फुल डिस्क्लोजर मिलता है, क्योंकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है ना, ओपन टू पब्लिक रहता है। ओपन टू पब्लिक होता है तो वो लोग उसको और डेवलप कर सकते हैं, इनोवेशन को और बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स अभी देखते हैं कि पैटेंट को पढ़ा कैसे जाता है। हम लोग ये सोचते हैं पैटेंट बहुत बोरिंग है ना, पढ़ने के लिए एकदम दिखने में एकदम अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं पैटेंट को हम लोग ठीक तरह से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे जैसे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, हम लोग एकदम बिगिनिंग से शुरू करके एंड तक पढ़ते हैं। ऐसे पैटेंट को पढ़ा नहीं जाता है। ऐसे पढ़ते हो तो वो और भी ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो देखते हैं अभी कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो पैटेंट पढ़ने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं पैटेंट में क्या रहता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ऊपर लिखा हुआ रहता है कौन से कंट्री का पैटेंट है। ये मैंने यूएस पैटेंट इसमें डाला हुआ है। इसमें फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज में बिब्लियोग्राफी रहता है। बिब्लियोग्राफी मतलब सारे डिटेल्स रहते हैं, किसने पैटेंट किया है, कौन ओनर है इस पैटेंट का, कब ये पैटेंट फाइल हुआ था, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। ये ऑल्सो दिखाता है कि इसमें कितने क्लेम्स है और कितने ड्रॉइंग्स है, किस डेट को पैटेंट ग्रांट हुआ था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है बिब्लियोग्राफी में। तो फर्स्ट पेज में हम लोगों को बिब्लियोग्राफी मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट मिलता है। अभी बिब्लियोग्राफी सेक्शन में बहुत सारे डेट्स लिखा हुआ रहता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन से पैटेंट फाइल किया गया है उस दिन से हम लोग को मोनोपोली जो मिलने वाला है 20 साल का, वो इस डेट सेकंड से नहीं होता है। तो इसलिए ये डेट सारा हम लोग को बिब्लियोग्राफी सेक्शन में मिलता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अंदर आए तो बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन। पहले सर स्लाइड मूव नहीं कर रही है, लिखा हुआ रहता है कि इसके पहले क्या हुआ गया था। कौन सा स्लाइड पे है, मैं 20 नंबर स्लाइड पे हूँ, दिख रहा है? नहीं, स्लाइड तो मूव ही नहीं कर रहा है, स्लाइड तो फिक्स है। ऐसा क्या? पहले स्लाइड पे है हम लोग। अच्छा,
ओके, फिर से मैं शेयर करता हूँ फिर। हाँ, हाँ, ओपन दिस। मैंने फिर से खोला इसको, देखिए, दिखेगा तो आप बताइएगा। एक बार स्लाइड ना सारा 1 2 3 करके देख लीजिएगा वो चेंज हो रहा है कि नहीं, तो मैं बताऊंगा ना। अभी देखिए, आ रहा है, दिख रहा है। अभी फर्स्ट पेज दिख रहा है, सेकंड पेज करिए। हाँ, अब आया सेकंड पेज, ठीक है। कर दिया मैंने सेकंड। हाँ, ये कुछ आया, भी नहीं दिखा था, ये कुछ भी नहीं दिखा था, ये ये सारा न्यूज़ी पहले। वीडियो के बारे में जो बोल रहा था मैं। ओह हाँ, अच्छा अच्छा, ये मुझे तो नहीं पता था। मेरा तो स्लाइड्स हाँ, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया करते करते, नहीं बट नहीं, आप एक बार एनीवे, फिर लेट से मी हिंदी सी में बता हियर। ओके, दीजिएगा, कोई तो बात दिस नहीं इज जी। द न्यूज़ी वीडियो। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो नोजी वीडियो का एग्जांपल दिए थे, ये हाँ, नोजी वीडियो वाला पैटेंट है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड का क्लेम लिखा हुआ है, और ये जो बॉल वर्म है उसके बारे में है। कॉटन सीड, कॉटन प्लांट के ऊपर है ये। जी जो जी कोर्ट में किया, जो हुआ था, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था, दिल्ली कोर्ट में क्या हुआ था, ये जी, सारे मैंने डिस्क्राइब किया था उस टाइम पे। हम्म, एंड फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट पे गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये पर्टिकुलर क्या कहते हैं डिसीजन गया, जो जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनवैलिडेट कर दिया था उसको। जी और नोजी वीडियो को डैमेजेस अभी देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने इन्फ्रिंज किया है उसको। अच्छा, तो ये हम लोगों ने देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन कौन से टाइप का होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है, ये मेडिसिन है, ये ऑटो इंजेक्टर है जो मैं बता रहा था, तो डिजाइन प्रोटेक्शन के अंडर होता है। ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स जो मैं बोल रहा था, 20 साल, 15 साल, 18 साल, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है 10 साल प्लस, जी और जी, 5 साल। हाँ, अच्छा, ये है रिसर्च पेपर और पैटेंट डॉक्यूमेंट। इसके बारे में मैं पूछ रहा था कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। तो ये रिसर्च पेपर ऐसा दिखने में होता है, वेरएस पैटेंट डॉक्यूमेंट जो है राइट साइड में जो है ऐसे दिखने में होता है। पैटेंट राइट जो मिलता है ये इन्वेंटर को दिया जाता है गवर्नमेंट से, किस लिए, ताकि इन्वेंटर पूरा डिस्क्लोज करे। और ये राइट में क्या मिलता है कि वो बाकी लोगों को स्टॉप कर सकते हैं, ताकि वो बना ना पाए, उसको यूज ना कर पाए, सेल ना कर पाए, और इंपोर्ट ना कर पाए। सो पैटेंट क्यों हम लोगों को चाहिए, ताकि हम लोग इसको कमर्शियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो जी, रिसर्च किए हैं, इसके पीछे इतना पैसा डाले हैं, इतना टाइम डाले हैं, उसका वैल्यू हम लोग को वापस मिलना चाहिए, राइट। इसीलिए हम जी, लोग को वो पैटेंट राइट में मिलता है मोनोपोली, ताकि सिर्फ हम ही उसको बेच पाए और कोई नहीं बेच पाए उसको। वेरएस बाकी लोगों के लिए क्या होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सीक्रेट नहीं है, डिस्क्लोज किया जाता है, तो उसके ऊपर उस पे हम लोग इनोवेशन और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ताकि उस इनोवेशन को और अच्छी तरह से किया जाए। जी, अभी पैटर्न्स क्यों इतने बोरिंग होते हैं, ये मैं बता रहा था कि दिखने में बहुत बोरिंग लगता है, पैटर्न्स पढ़ने को मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं पैटर्न्स, उस टाइम पे हम लोग पहले से लेके एंड तक पढ़ते हैं, तो जी, उस तरह से पैटेंट नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग जो पैटेंट पढ़ते हैं उसका एक डेफिनेट वे होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट पेज है पैटेंट का, ये मैं यूएस का फ्रंट पेज दिखा रहा था। तो यूएस पैटेंट में ऊपर लिखा हुआ रहता है ये यूनाइटेड स्टेट्स पैटेंट है, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट रहता है, और डिफरेंट बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन रहता है यहाँ पे। देखिए, इन्वेंटर का नाम लिखा हुआ रहता है, असाइनी मतलब जो ओन करता है पैटेंट, वो लिखा हुआ रहता है, क्लासिफिकेशन क्या है, किस दिन को फाइल हुआ था, ये लिखा हुआ रहता है। जी, इस बिब्लियोग्राफी पेज में बहुत सारे डेट्स होते हैं, ओके। इस डेट्स में जो फाइलिंग डेट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइलिंग डेट से हम लोग 20 साल का मोनोपोली मिलता है हम लोगों को। तो ये फाइलिंग डेट हम लोग अगर बिब्लियोग्राफी पेज में देखें तो हम लोग को पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है जुलाई 18 2002, मतलब इस पेटेंट को वैलिडिटी कब तक होगा, जुलाई 18 2022 तक होगा, जी, अगर वो मेंटेन करते हैं तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इस पैटेंट का वैलिडिटी कहां तक है। इसके बाद पैटेंट के अंदर जाए तो पहले बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। बैकग्राउंड मतलब
बैकग्राउंड मतलब क्या होता है कि इसमें पहले क्या हो चुका है, किस तरह का इन्वेंशन पहले एग्जिस्ट करता था, वो दिया जाता है उसमें, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कैसे क्या चीज पहले मालूम था जिसके ऊपर हम लोग और रिसर्च करके ये नया चीज बनाया है। उसके बाद रहता है समरी ऑफ इन्वेंशन। समरी ऑफ इन्वेंशन में पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है। उसके बाद रहता है डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स रहता है, जैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका रिजल्ट्स क्या है, ये सारा कुछ रहता है। उसके बाद रहता है एग्जाम्पल्स, जैसे ये तो बताया गया कि ये सारा चीज किया गया है, अब इसमें यूज कैसा है, कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसको, ये एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं। और फाइनली ड्राइंग्स, अगर जरूरत है तो हम लोग उस पर ड्राइंग्स भी देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैटेंट में क्लेम। क्लेम मतलब क्या इन्वेंशन है इसमें, इस पैटेंट के अंदर वो लिखा हुआ रहता है क्लेम। क्लेम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये सारा चीज इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसी को हम लोग कोर्ट में वैलिडेट कर सकते हैं। कोई अगर इन्फ्रिंज करते हैं तो इस क्लेम को इन्फ्रिंज करते हैं और क्लेम के ऊपर बेस करके हम लोग को डैमेजेस मिलता है। तो अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए? हम लोग को पूरा पैटर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिब्लियोग्राफी वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है एक रिसर्चर को पढ़ने की। उनको क्या चाहिए, उनको बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन पढ़ना है ताकि उनको पता चले कि इससे पहले क्या हुआ था। समरी ऑफ द इन्वेंशन पढ़ना है ताकि इस इन्वेंशन में क्या लिखा गया है वो पता चले। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट और समरी डिफरेंट होता है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बोले तो एब्स्ट्रैक्ट इज मोर लाइक कि क्लेम क्या किया गया है उसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग पैटेंट पढ़ रहे हैं एज अ रिसर्चर तो हम लोग को समरी पे ध्यान देना चाहिए कि पैटेंट एक्चुअली किस चीज पे है वो बताया जाता है। अगर हमको लगे कि हाँ ये समरी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग जाकर डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका रिजल्ट्स क्या है, उसमें इन्फ्रेंस क्या निकाला गया है, वो सारा कुछ आएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होता है फॉर अ रिसर्चर। क्योंकि रिसर्चर क्यों पढ़ेंगे इसको, ताकि वो उस जो इन्वेंशन है उसको और इंप्रूव कर पाए, है ना। तो इसलिए इतना ही पढ़ना काफी रहता है रिसर्चर के लिए। बाकी पढ़ेंगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन सोचो आप अगर इन्वेस्टर हो, आप अगर इस पैटेंट को लेके उसका कुछ बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, तो उस वहां पे क्या है, आपको बहुत जरूरी है कि आप दूसरी तरह से उसको पढ़ें। आप अगर इन्वेस्टर मतलब हो सकता है आप वो पैटेंट को नहीं बनाना चाहते हो, कोई चीज है जो आपको बहुत अच्छा लगा है और उसको आप खुद बनाना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था एक क्लाइंट जिनको ये अभी जो मास्क मिलता है ना, वो मास्क बनाना था उनको। लेकिन मास्क क्या होता है, सारे ओपेक होता है, कपड़े का होता है, तो हमारा होंठ नहीं दिखता है। सो व्हाट ही सेड इज दैट कि हमें ऐसा मास्क चाहिए जहां पे हम लोग को लिप्स दिखे, ताकि हम किसी को स्माइल करें तो उनको पता चले कि हम स्माइल कर होते हैं। वो लोग कैसे पता चलता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग हमारे लिप्स फॉलो करते हैं कि ये बोल रहे हैं, उसको देख के उनको समझ में आता है। अगर मास्क पहना रहे तो ऑब्वियसली उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनको लगा कि हाँ ये अगर ट्रांसपेरेंट वाला सामने हो तो हम लोग का लिप्स दिखेगा जब हम लोग बात करें मास्क के थ्रू से, और वो हम लोग पैटेंट कर सकते, पैटेंट मतलब उसको बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाने के लिए फैक्ट्री में सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लाने की प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिए और हमारे पास आए देखने के लिए कि वो हम लोग बना सकते हैं या नहीं। वहां पे जाके हम लोगों को पता चला कि किसी ने उससे बचना पड़ेगा, राइट, यू कैन नॉट मेक इट, क्योंकि अगर हम लोग बनाते हैं तो इन्फ्रिंजमेंट केस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग के पास दो चीज है, एक तो है हम लोग उसको इम्प्रूव करें किसी भी तरह, और नहीं तो हम लोग जिसका पेटेंट है उससे हम लोग लाइसेंस ले बनाने का। तो ये चीज जो है, जो इन्वेस्टर है वो अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो फ्री टू यूज है या नहीं। तो उसके लिए उनको जो पैटेंट पढ़ना है वो पूरा पैटेंट पढ़ने का उनको जरूरत ही नहीं है। ये इन्वेस्टर जो है वो शायद टेक्निकल पर्सन है भी नहीं, उनको शायद पता भी नहीं चलेगा क्या लिखा है। तो उनको क्या देखना है, उनको समरी या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है ताकि उनको पता चले क्या इन्वेंशन है इसमें। और फिर अगर उनको लगे कि हाँ इन्वेंशन हमारे प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, तब वो जाके क्लेम्स पढ़ेंगे और क्लेम्स में पता चलेगा कि क्या क्या क्लेम किया गया है, क्या क्या उनका इन्वेंशन है जो प्रोटेक्टेड है। क्लेम का जो बाउंड्री है वो डिपेंड करता है कैसे क्लेम लिखा गया है। क्लेम बहुत तरह के होते हैं,
उसमें दो तरह के क्लेम हम लोग बोलते हैं। एक बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लेम, जो बाय अलोन वो स्टैंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लेम अगर पढ़ो उसमें अगर कुछ लिखा है जो हमारे प्रोडक्ट से मैच करते हैं तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे उसको। एंड डिपेंडेंट क्लेम होता रखा हुआ रहता है तो हम लोग उसको सर्कमवेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर जो है उसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, डिटेल डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, उनको बस समरी पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और क्लेम्स पढ़ना है। शिलेंद्र मूव हो रहा है ना स्लाइड अभी? हाँ, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, राइट, ओके। सो ये हो गया डिटेल। अभी जाते हैं हम लोग एनालिसिस। हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे कि पैटेंट पढ़ना है, पढ़ के कैसे पता चलेगा कि पैटेंट में क्या है। तो उसमें हम लोगों को इसको बोलते हैं पैटेंट एनालिसिस। पैटेंट एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि पैटेंट ऑलवेज क्या करते हैं, वो बता देता है कि इन्वेंशन क्या है। पैटेंट में कुछ छुपाया नहीं जाता है। अगर आप कुछ छुपाते हो तो वो पैटेंट मिलेगा नहीं, कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, पैटेंट आप जब पढ़ते हो आपको सारा पता चल जाता है कैसे वो इन्वेंशन हुआ है ना। उसके बाद क्या होता है, पैटेंट सब हमेशा पब्लिश होता है तो ऑब्वियसली पैटेंट तो दिखेगा सबको। तो इसलिए ऐसा पैटेंट अगर आप पढ़ते हो, अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो ये बहुत इजी रहता है क्योंकि पैटेंट हमेशा पब्लिश रहता है। एंड पैटेंट का क्या है, पैटेंट ग्रांट होने से पहले पब्लिश होता है। तो ग्रांट हो या ना हो, किसी ने अगर कुछ भी किया है, कुछ भी रिसर्च किया है, वो अगर पैटेंट में पब्लिश हो जाता है तो बाकी लोगों को पता चल जाता है। इसीलिए पैटेंट पब्लिकेशन बोलो या पैटेंट डॉक्यूमेंट में बोलो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है जो हम लोग एनालाइज करके उसका यूज कर सकते हैं। ना कब यूज करना चाहिए, जैसे सोचो कोई इन्वेंटर है, वो कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, वो अगर पैटेंट पढ़ लेता है उसको पता चलता है कि इस तरह का इन्वेंशन पहले हो चुका है, ताकि वो डुप्लीकेट ना करे सेम थिंग। सोचो उनको पता ही नहीं है, कोई किसी ने पैटेंट कर दिया है, उसने 2-2.5 साल अपने रिसर्च में गवा दिया, उसके बाद रिसर्च होने के बाद जब उसका पेपर पब्लिश हुआ तो पता चला वैसा तो पेपर पहले ही किसी ने पब्लिश कर दिया है। तो इसीलिए पैटेंट सर्च कर लेना बहुत अच्छा रहता है पहले, ताकि हम लोग डुप्लीकेट ना करें वर्क। जो एंटरप्रेन्योर है उसको मॉनिटर करना होता है कि उनके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं या मार्केट ट्रेंड क्या है। जैसे सोचो एक टाइम था जब हमारे पास पेजर हुआ करता था, मुझे पता नहीं आप लोग कभी सुने हो या नहीं। पेजर बहुत जैसे हम लोग अभी मोबाइल फोन लेके घूमते हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो मेरे पास ये मोबाइल फोन है। उस जमाने में क्या था, पेजर था। पेजर में क्या था, वो एसएमएस जैसा आता था, हम एसएमएस से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन पेजर का जो लाइफ टाइम था बहुत शॉर्ट था, क्योंकि कुछ ही दिन में मोबाइल फोन में ही एसएमएस सर्विस आ गया, तो तब लोग पेजर खरीदना बंद कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, जो लोग पेजर इंडस्ट्री में थे उनको पहले से उनको पता होना चाहिए था कि इस तरह का चीज फोन में आ सकता है। तो वहां पे उन लोगों ने जितने भी रिसर्च किया वो सारा बेकार गया। तो इसीलिए हम लोग जब कुछ रिसर्च करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है नया चीज लाने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग अगर पैटेंट एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि अभी ट्रेंड क्या जा रहा है। अगर उस टाइम पे वो ऐसा एनालाइज करते तो उनको पता चलता है कि मोबाइल फोन वाले भी एसएमएस सर्विस लाने का सोच रहे हैं, है ना। तो जैसे अभी क्या हुआ, आईएसटी, हम लोग आईएसटी सर्विस इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट। आजकल लोग आईएसटी करते ही नहीं है, क्या करते हैं, व्हाट्सएप में कॉल कर देते हैं। यूएस में कॉल करना है, जापान में कॉल करना है, आईएसटी क्यों करेंगे, हम लोग व्हाट्सएप में कॉल करते हैं। तो वही चीज है, आईएसटी धीरे धीरे अभी ऑब्सोलेट होते जा रहा है। सिमिलरली हम लोग को ट्रेंड पता करने के लिए अगर हम लोग पैटेंट करते हैं तो पता चल जाता है कि इस तरह का इन्वेंशन हो रहा है आजकल, एंड हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है रिसर्च करते वक्त मिला तो वो हम लोगों को उनको देखना होता है कि वो उसका कोई सोल्यूशन है या नहीं। वो रिसर्च सोल्यूशन जो है वो भी हम लोग पैटेंट डॉक्यूमेंट से निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी ने वैसा रिसर्च किया है, उस मॉलिक्यूल से नहीं, किसी और मॉलिक्यूल को लेके किया है, तो वो वाला जो फाइंडिंग है वो हम लोग अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो आइडिया जनरेशन जो है वो भी पैटेंट एनालिसिस से इजी हो जाता है। ये सब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कितने तरह का पैटेंट सर्च होता है। पैटेंट सर्च में क्या होता है, हम लोग एक पैटेंट सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं पैटेंटेबिलिटी और नोवेल्टी सर्च। तो नोवेल्टी सर्च में क्या होता है, अगर हम लोग कोई नया इन्वेंशन करने वाले हैं, हम लोग पहले सर्च करते हैं ऐसा पहले हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा पहले हो चुका है तो हमारे रिसर्च में नोवेल्टी नहीं है। नोवेल्टी अगर रहता है तो उसको हम लोग पैटेंट कर सकते हैं।
तो इस सर्च को बोलते हैं हम लोग नोवेल्टी और पैटेंटेबिलिटी सर्च। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्च होता है फ्रीडम टू ऑपरेट। ये होता है कि हम लोग किसी और का पैटेंट इन्फ्रिंज कर रहे हैं या नहीं, वो पता करने के लिए करते हैं। जैसे न्यूजी वीडियो ने अगर फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च किया होता तो उनको पहले ही पता चल जाता कि मोनसैंटो का वैसे एक पैटेंट है, लेकिन शायद उन लोगों ने नहीं किया। तो अगर वो करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ये सारा चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जो मैंने अभी मास्क की बात की, ट्रांसपेरेंट मास्क का भी ये क्लाइंट ने, उन्होंने पहले ही फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च किया, इसीलिए पता चला कि वैसा पैटेंट किसी के पास है जो हम लोग को स्टॉप कर सकते हैं बना ये सारा चीज बनाने के लिए। तो वो होता है फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च। बाकी भी डिफरेंट तरह के सर्च होते हैं, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोवेल्टी सर्च और फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च। अभी हम लोग देखते हैं अगर किसी के पास इन्वेंशन को पैटेंट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, एक बार सर्च करना होता है, चेक करने के लिए कि वैसा इन्वेंशन पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वैसा इन्वेंशन पहले से अवेलेबल है तो उस पर रिसर्च करके कोई फायदा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास तो नोवेल्टी पड़ा हुआ है, पैटेंट तो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको लिख के रखना चाहिए कि हमने कि ये चीज ट्राई किया, इसका ये रिजल्ट हुआ है। हम लोग ये ऑब्वियसली करते हैं, हमारे लेबोरेटरी नोटबुक पे लिखते हैं, लेकिन अगर पैटेंट करना है तो उसको अलग से और एक कॉपी में लिखना चाहिए, ताकि जब हम लोग इसको पैटेंट करना चाहें तो वो ये डिस्क्लोजर होता है उस इन्वेंशन का वैल्यू। देखो जो भी नया चीज है उसका इंडिया में काफी सस्ते और 40 लाख तक पहुंच जाते हैं पैटेंट, तो बहुत अगर ये एक्सपेंसिव पैसा हम लोग बना रहे हैं उसको बेच के अगर वैसा उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है तो उसको पैटेंट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कमर्शियल वैल्यू है उस इन्वेंशन को तो ही उसको पैटेंट करना चाहिए, नहीं तो उसको करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि इतना खर्चा करके उसको पैसा वापस मिलना मुश्किल ना। अगर आप सोचते हो कि हाँ ये इसका वैल्यू अच्छा रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, इट्स ऑलवेज गुड कि हम लोग किसी नॉलेजेबल पर्सन से पैटेंट ड्राफ्ट करवाएं, है ना। जैसे पैटेंट अटॉर्नी हो, पैटेंट एजेंट हो, जिनके पास उस तरह का डिग्री हो। जैसे सोचो आपने बायोटेक का पैटेंट किया है, तो ऐसे पैटेंट एजेंट अटॉर्नी के पास जाना चाहिए जिसका बायोटेक बैकग्राउंड हो। जैसे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, तो ऐसे पैटेंट अटॉर्नी के पास जाना चाहिए जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हो या उनको उस तरह का नॉलेज हो, क्योंकि लॉयर तो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, है ना। तो हम लोग को ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उस लॉयर का बैकग्राउंड भी टेक्निकल वो अंडरस्टैंडिंग है, तो ही वो बता पाएगा कि वो इन्वेंशन कैसे बनाना चाहिए, कितना ब्रॉड उसका क्लेम होना चाहिए, क्लेम स्कोप क्या है वो डिटरमाइन करेगा। और हाँ, जब भी आप किसी भी पैटेंट अटॉर्नी से बात करो इन्वेंशन सिक्योर करने के लिए, उसके साथ एक एनडीए भी साइन करना चाहिए। एनडीए क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ऐसा ना हो कि आपने अपना इन्वेंशन 3-4 साल में आपने बनाया और फिर आपने एक अटॉर्नी के पास ले गया और आपने उसको सारा कुछ बता दिया और आपसे पहले उसने खुद ही अपने नाम पे फाइल कर दिया, है ना। तो इसीलिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देना बहुत जरूरी होता है, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड फाइनली क्या होता है कि पैटेंट जब भी करना है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को नहीं बताना होता है, कोई न्यूज़पेपर में नहीं करना है, फेसबुक लिंक्डइन में नहीं देना चाहिए, कोई पब्लिक गैदरिंग में नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को पैटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए, करके उसके बाद ही बोलना चाहिए। क्योंकि किसी को आपने बोल दिया गलती से और वो पब्लिश हो गया किसी भी जगह, जैसे ऑनलाइन पब्लिश हो या न्यूज़पेपर में पब्लिश हो या आर्टिकल में पब्लिश हो, तो वो पैटेंट एग्जामिनर जब सर्च करते हैं वो सारी चीज सर्च करते हैं और देखते हैं कि कहीं पे वो है या नहीं। अगर वो सारा वैसा इन्वेंशन पहले से अवेलेबल होगा तो उसको पैटेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक, सो ये हमारा आज का शॉर्ट पैटेंट के बारे में लेक्चर था। किसी को अगर कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क मी, ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। अगर बाद में भी आपको कभी मेरे से बात करना है या मुझे लिखना चाहते हैं तो इस पे आप लिख सकते हैं। शिलेंद्र, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? वी वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग
about your career, about anything else, है ना? तो you can ask. This is very good opportunity because Dr. Bhaskar Datta sir, not only our senior but also he's worked in various pharma sector, biotech sector, mechanical sector, FMCG sector, right? He has a long experience over this managing the patents, and he is currently handling the patent as a patent agent, trademark agent, IP management, PGDB operations, right? So a lot of degree also he have, and also he studied a lot of things regarding all this. So if you, all of you know, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो एक लाइन में ये निष्कर्ष है जो सर ने बताया कि देखो पहले तो जो हम लोगों की एक हैबिट है ना शेयरिंग की, हर चीज हम लोग शेयर कर देते हैं। तो ये चीज आप साइंस में अगर गलती करते हो तो आपका इन्वेंशन होगा और मजे कोई और लेगा, ठीक है ना? तो पहली लाइन तो आज लेके जाओ, है ना? व्हाट इज द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस डिस्कशन, कि पहले तो अगर कोई आइडिया आता है तो नोट करना सीखो डायरी में, ठीक है ना? फिर इसको इवॉल्व करो, डेवलप करो, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना? अपने ऐसे टीचर से डिस्कस करो जो कि अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएगा, आपकी चीजों को डेवलप करेगा, ठीक है? फिर पेटेंटिंग प्रोसेस में जाने के बाद ही आप कहीं इससे डिस्कस करो। ऐसा ना हो कि डिस्कशन में दूसरा कोई फायदा उठा ले जाए। और इसकी लाइसेंसिंग की फीस बहुत अच्छी खासी मिल सकती है अगर आपका इन्वेंशन कोई काम का है तो, ठीक है ना? तो अगर आपको कभी मौका मिले, कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हो जिसकी प्राइस बहुत हाई है, तो ये समझ लेना कि उसमें जरूर बहुत सारे पेटेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो सारी फीस, जैसे एप्पल का फोन का सर ने जिक्र किया, सीड कंपनी है ना, मॉन्सेंटो जैसे है, तो वो बहुत सारे पेटेंट लेके आती है सीड के एक्सक्लूसिव राइट्स, है ना? उस पर काफी प्रॉब्लम भी हुई, हमारे काफी विदर्भ में किसानों ने उसके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन किया और आत्महत्या भी किया। तो एक कहीं कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है पेटेंटिंग। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और जो क्वेश्चन बढ़िया पूछेगा उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा Okay, Pravesh. So let us end this session, and thank you once again, sir, for accepting in a very short notice. I have just given a message कि सर हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा कर दीजिए, और आपने एक्सेप्ट किया। एंड मेरे बच्चे हमेशा हमारी तरफ ही देखते हैं कि सर कोई न कोई सैटरडे को कराते हैं कोई टॉक, बहुत इनोवेटिव होता है। घर पे बैठे हैं सारे बच्चे कोरोना टाइम में, तो उनका भी दिल लगा रहता है, कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे पास में होते हैं तो और भी तरीके से मैं हैंडल करता हूँ, और बच्चे दूर हैं तब भी मैं चाहता हूँ कि वो कुछ सीखते रहें। तो थैंक यू वंस अगेन सर, जब भी मौका मिलेगा आई विल इनवाइट यू टू अटेंड माय कॉलेज। और इससे आशा है कि बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों को। तो बच्चों कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी अगर क्वेश्चन लेटर ऑन भी अगर आपको आता है तो यू कैन मेल मी एंड व्हाट्सएप में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Shilendra. Thank you, students. Thank you, sir. कुछ भी, yeah, thank you. And if you have any question, आप शिलेंद्र को भेज सकते हो, and I can discuss with him. Thank you for your time. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you so much. एंड कर दीजिए सर वहां से। रुकिए, मेरे यहाँ पे ना एंड स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, कमेंट आप बॉक्स कर में सकते हो, पार्टिसिपेंट बॉक्स में आएगा सर। अच्छा, मैंने ये चलाया था ना, इसके बाद हाँ, शेयर पहले बंद करिए। शेयर बंद कर दो। हाँ हाँ, अभी शेयर बंद कर दिया, अब आपको दिखेगा। आया, राइट, हाँ, राइट।